Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम एक बार फिर हमने प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वर्स 2, 3, 10 एंड 11 में से लिया है। आइए हम परमेश्वर का पाक कलाम पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में अर्पित करेंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यारी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर अनकंडीशनल mercy and blessing. Make us able to read and speak the word of God, meditate on the word of God and receive abundant blessing and strength, and make us able to increase our faith in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, strength of Yahweh Parmeshwar. I ask this prayer. Amen and amen. प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वर्स 2, 3, 10 and 11 I'll read in Hindi as well as in English. मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारी परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। वर्स 10 and 11, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। यह परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर, हर एक विश्वासी पर बनी रहे। आमीन। I'll read in English, chapter 2, verse 2, 3, 10 and 11. I know what you have done. I know how hard you have worked and how patient you have been. I know that you cannot tolerate evil men and that you have tested those who say they are apostles but are not, and have found out that they are liars. You are patient. You have suffered for my sake, and you have not given up. Verse 10 onward, हम पढ़ेंगे 10 and 11. Do not be afraid of anything you are about to suffer. Listen, the devil will put you to the test by having some of you thrown into prison, and your trouble will last 10 days. Be faithful to me even if it means death, and I will give you life as your prize of victory. If you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches. Those who win the victory will not be hurt by the second death. This is the word of God. Praise be to God. Amen. आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने बहुत ही साधारण शब्दों में एक बार फिर हमें ये बताया कि परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और everybody knows that, and the word of God is also telling us that. यहाँ पे कहा गया, मैं तुम्हारा आचरण, तुम्हारी परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। I know what you have done. I know how hard you have worked and how patient you have been. The Lord is saying that He knows everything, what suffering, what pain, how hard
we are stick to the word of God and we stick to the Lord, that doesn't matter whatever situation comes in our life, we will give praise and thanks only to the Lord, none other. The word of God is saying this only. And it is saying, I know how hard you have worked and patient. I know that you cannot tolerate even man, and that you have tested those who say they are apostle but are not. यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, मुझे पता है कि कितना दुख, कितना पेशेंस और कितना सब्र तुम में है, और मैं ये भी जानता हूं that you cannot tolerate evil man, that हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। अगर हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं और परीक्षा में पढ़ के भी हम उससे लड़ के विजयी हो रहे हैं और परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर रहे हैं, ये और कोई नहीं, ये सामर्थ, ये बल हमें हमारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट दे रहे हैं। परमेश्वर के कलाम में कहा गया, द लॉर्ड गॉड इज माई स्ट्रेंथ, यहोवा परमेश्वर मेरी सामर्थ है। उसी तरह यहाँ पे कहा गया, I know that you cannot tolerate even man, परमेश्वर जानते हैं कि हम नहीं इन लोगों को टॉलरेट कर सकते, इनके विचारों को, इनकी सोच को, इनकी जुबान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर भी हम ये सब सुनने के बाद अगर खामोश हैं और हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर उसका जवाब देगा। We know that. And we are victorious, we will always and forevermore be victorious. आगे लिखा गया कि you have tested those who say they are apostle but are not, and have found out that they are liars. बहुत से लोग, आज हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, बहुत से लोग झूठे पाखंडी रिलीजन्स का सहारा लेके, मैं किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन अपनी खुद की पब्लिसिटी करने के लिए धर्म का सहारा लेके किसी भी रिलीजन में आके जहां उनको जगह मिल रही है या जहां पे उनका झूठ फिक्स हो रहा है या उनकी तरह झूठ बोलने और समझने वाले लोग उनको मिल रहे हैं, वे लोग आज हमारे भारत देश में गंदगी फैला रहे हैं। और यहां लिखा इन हिंदी, आई विल रीड, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं, तुमने उनकी परीक्षा ली और उन्हें झूठा पाया है। जो अपने आप को प्रेरित कह रहे हैं, अपोस्टल कह रहे हैं, धर्म गुरु कह रहे हैं या किसी संगठन से जुड़े हुए कह रहे हैं, पर वो है नहीं और वे झूठे पाए जाते हैं बाद में। लेकिन उस समय जो किसी भी जन पे जब वो झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो वो जन जब उस आरोपों को झेल के, उस आरोपों पे विजयी होके, उस आरोप लगाने वाले पे जब वो विजयी होता है, तो वो बिना आवाज की लाठी है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो परमेश्वर के घर से उनके ऊपर पड़ती है, जो उन पे फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं। और लिखा गया, तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि ये सामर्थ हमें हमारे परमेश्वर ने दी। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात कही गई थी कि ये लिखा गया, I know that you cannot tolerate even man, that you have tested those who say they are apostle but are not,
यहाँ लिखा गया, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। यहाँ पे केवल क्रिश्चियनिटी को नहीं कहा गया परमेश्वर के द्वारा, यहाँ पे एक बार फिर परमेश्वर ने पूरे संसार के बारे में कहा। जो अपने आप को किसी भी धर्म गुरु का कहता है कि वह धर्म गुरु है पर है नहीं, उनका धंधा ही ये है लोगों पे फॉल्स एलिगेशन लगा के, उनको ब्लैकमेल करके, उनकी रिस्पेक्ट को खराब करने की कोशिश करने का और उनसे पैसे हेठने का। लेकिन वे ये नहीं जानते, 2 पल के पैसे लेके तुम अपनी इच्छाएं या अपना स्वार्थ पूरा तो कर लोगे, लेकिन वो पैसा सदा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। आगे कहा गया 10वीं आयत में, Do not be afraid of anything you are about to suffer. Listen, the devil will put you to the test by having some of you thrown into the prison. बहुत से लोग जेलों में डाल दिए गए। रिसेंटली हमारे क्रिश्चियन समाज की नन्स को जेल्स में डाल दिया गया। क्या हुआ? बहुत उछले लोग, बहुत उछले, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने ये बोल रहे। इलेक्ट्रॉनिक आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसका लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी में अगर कोई किसी के बारे में झूठ बोल के कोई वीडियो डाल देता है, उसमें 10-20 हज़ार लाइक मिल जाते हैं, तो वो फर्जी लोग उतने से लाइक्स में ही खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने का या लाइक्स पाने का नहीं है। जो परमेश्वर ने दर्शाया अपने पाक कलाम में, कहा कि शैतान तुम्हें कैद में डाल देगा, तुम में से कई लोगों को। यहाँ लिखा गया, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में से कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिन तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जीवन का मुकुट परमेश्वर ने हमारी वो 2 बहनें जो नन्स हैं उन्हें दिया, क्योंकि वे ईमानदार बनी रही। और ये गवाही है कि पूरी दुनिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी और वो प्रार्थनाएं सुनी गई और परमेश्वर ने बहुतायत से उन्हें बरकतें बारिश किया। और अब जिसने फॉल्स एलिगेशन लगाए थे, अब बारी है उसकी कि भाग, कहाँ तक भाग सकोगे। जब परमेश्वर न्याय करेगा तो भागने को 1 इंच भी जगह ना मिलेगी, क्योंकि आसमान भी उसका, धरती भी उसकी, समुंदर भी उसका, समुंदर की गहराई भी उसकी, समुंदर के बीच का पानी भी उसका, ये हवा भी उसकी। ये परमेश्वर का पाक कलाम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। आगे लिखा है, इफ यू हैव ईयर देन लिसन to what the Spirit says to the churches. Those who win the victory will not hurt by the second death. अभी तो लोग सो रहे हैं और जो मृत्यु मिलेगी भागने को जगह ना मिलेगी। ये परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत, प्यार, presence of Holy Spirit in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, हर एक विश्वासी, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर पर, मेरी वाइफ पर, हमारे बच्चों पर, मेरे भाई पर, हमारे फैमिली मेंबर्स पर, अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन एंड आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name, we ask this prayer. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed is the fruit of thy womb, Lord Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit, strength of Yahweh Parmeshwar be on every believer, pastor, preacher, and on me, my wife, our kids, my brother, and our family members. In the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit. Love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen.